Hey, welcome back once again. In this video, we find factor of a polynomial with the help of factor theorem. Okay, so let us start now. Example 14 given in your book, factorize y square minus 5y plus 6 by using the factor theorem. Okay, so first we let px equal to py because variable is y square minus 5y plus 6 now, and let a and b be the zeros of px py. Then we can write y square minus 5y plus 6 equal to y minus a and y minus b. Now multiply both y square minus ay minus by plus ab and y square minus a plus b y plus a, y square minus 5y plus 6. Comparing both sides, we have comparing both sides, we have or we get a plus b equal to 5 and ab equal to 6. Now factor of 6 is factor of 6 are 1, 2 and 3. Okay, so we find particular, check the value of t at 1, 2 and 3. Okay, so p at 1 equal to 1 square. What is your polynomial? Y square minus 5y. So 1 square minus 5, 1 plus 6 equal to 1 minus 5 plus 6. So it will be plus 2. This implies that x minus 1 is not a factor of polynomial, that is py. Okay, तो ये तो फैक्टर होगा नहीं. Now we further proceed and we check p at 2. 2 square minus 5 into 2 plus 6, 4, 10 plus 6, and here 10 minus 10 equal to 0. This implies that 2 is zeros of polynomial. So this implies that x minus 2 is a factor of py. Again we check at point 3. So p at 3 square minus 5 into 3 plus 6, 9, 15 plus 6 and 15 minus 15 equal to 0. P at 3 equal to 0. This implies that x minus 3 is a factor of py. X minus 3 is a factor of py. Okay,
therefore y square minus 5y plus 6 equal to x minus 2 and x minus 3. This is the factor of the polynomial by the factor theorem. Okay, and what is the value of a and b? A equal to 2 and b equal to 3. This, here a plus b equal to 5 and ab equal to 6. This is the requirement of, if we see above, comparing both sides. Okay, this satisfies that. So we can say x minus 2 and x minus 3 is the factor of polynomial py. Okay, अब देखिए ये तो फैक्टर थ्योरम से लग गया, लेकिन स्प्लिटिंग मेथड से देख लीजिए, ये आपको लगाना नहीं है, बस ऐसी जानकारी के लिए देख लीजिए। यहाँ पर स्टार बना लीजिए, क्या है ये, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यहाँ पर 6 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, 1 2 3, एडिशन 2 and 3 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 y प्लस 6। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2 6, y माइनस 2 अगेन, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। दिस इज द फैक्ट। ये तो सिंपल था, 4 से 5 लाइन में आ गया। ऊपर वाला देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पर y है ये, ठीक है, ये y है। ओके, इसके पहले वाले में क्या था, ये कितना फैक्टर थ्योरम से तो लंबा है, लेकिन स्प्लिटिंग मेथड छोटा है, तो आप किसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं क्या है। एक और एग्जांपल है जो कि आप खुद लगा सकते हैं। इसको रिमाइंडर थ्योरम जैसे, ये फैक्टर थ्योरम से जैसे लगाया जाता है, उसी अनुसार इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल 15 है, उसको आप खुद देखिएगा। और इसमें हम और देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 15 देखते हैं पहले, ठीक है, फिर आपका एक्सरसाइज आ जाएगा सीधा। एग्जाम्पल 15 क्या है, फैक्टराइज एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 फैक्टराइज x cube minus 23 x square plus 142x minus 120। तो इसको कैसे लगाना है, फैक्टर करना है, फैक्टर थ्योरम से ही करना है। अब 120 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से हमें देखना है तो हम किस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, पहले देखिए एक होगा ही, हम पहले एक पे चेक करते हैं। नाउ px इक्वल टू, सोल्यूशन देखिए इसका, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 p at 1, p at 1।
1 cube minus 23 into 1 square plus 142 into 1 minus 120. Here 1 minus 23 plus 142 and minus 120. So 143 minus 143, that is 0. This implies that x minus 1 is a factor. Why? With the help of factor theorem, we can say if the value of the polynomial at a point 0, then the point known as zeros are roots of the polynomial. So here x minus 1 is a factor. Now here we write polynomial x cube minus what is 23x square plus 142x minus 120, and here we see x minus 1 is a factor. Here we blank one line and we write at third. So सबसे पहले करना क्या है वो देखिए, यहाँ पर क्या है x क्यूब है, एक पावर कम करके यहाँ नीचे लिखिए क्या है ये x स्क्वायर। अब यहाँ पर सीधे जो फैक्टर है उसको लिख लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करके अगली लाइन भरेंगे हम, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब देखिए ऊपर x स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर हमें चाहिए कितना माइनस 23x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर माइनस 22x स्क्वायर कर दे तो इन दोनों को सम करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितना हमने ऐड किया है उसको लिखिए, लेकिन x का पावर एक कम करके लिखिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 1। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसमें तो फिर ये माइनस 22x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 22x, लेकिन ऊपर चाहिए 142x, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 120x हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 120 x के पावर एक कम करके लिखना है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर माइनस 120। अगर आपने गलत किया है तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 to 0 ये परफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ परफेक्ट आ रहा तो इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। कहीं अगर गड़बड़ हुई तो ये 120 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आ रहा है इसका मतलब सही है हम। अब आगे आ जाइए, अब सभी जगह से यहाँ देखिए x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ओके, एक फैक्टर तो x माइनस 1 आ गया, लेकिन यहाँ से भी तो दो आएंगे। अब देखिए 120 को हमें ब्रेक करना है दो जगह, जिसका सम क्या आ जाए ये 22 आए, और मल्टीप्लिकेशन देखिए 120 को अगर यहाँ ब्रेक कर दे क्या 12 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो रहा है, ऐड करेंगे तो 22 भी हो रहा है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए आप x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10x प्लस 120। ओके, नाउ x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसमें आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। नाउ x माइनस 1 एंड x कॉमन, x माइनस 12 minus 10 common, x minus 12. So x minus 1 and here again common x minus 12 and x minus 10. So you can write the factorization of this implies that or therefore x cube minus 23x square plus 142x
plus 120 is equal to x minus 1, x minus 10 and x minus 12 is the factor. ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि इसी तरीके से आपको लगाना था और इसी को निकालना था। ठीक है, तो अभी तो आपके एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं। ये कितना हो गया है मैं देख लूँ एक बार। एग्जाम्पल आपके ख़त्म हो गए हैं। अब आपका आएगा एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो ये छोटा वीडियो है, इसमें 2 एग्जाम्पल हुए हैं, अच्छे से कराया गया है इसको, आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको सीधे एक्सरसाइज 2.4 मिलेगा और वो कंप्लीट रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म करना हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा भी होगा वीडियो, हो सकता है कि अप्रॉक्स 1 आवर और लेस देन 1 आवर होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसको देखिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप खाते पीते हर समय देख सकते हैं। ठीक है, we will meet you next class with the exercise 2.4. Okay, thank you very much, thanks for watching.